Okay students, so let's start our class and I hope you guys are able to see the screen. सबको screen दिख रही है बेटा? Yes sir. Okay. So today we are going to start chapter number 9. Today we are going to start our chapter number 9, Introduction to Email. Okay? We will have something about it. हम लोगों ने चैप्टर को पहले ही पढ़ लिया है, बस हमको एक बार इसको रिकॉल करना है. तो चलो चलते हैं सीधे इंट्रोडक्शन टू ईमेल में. Who want to read from here? Take your name. Sir, I have to Mansi. Mansi. What's name sir? I have to Mansi. Sir, I have to Mansi. Aditya beta, from here you have to read. From here, email to this services sir. Come on, ready. Sir, कहाँ sir? बेटा जो हाईलाइट किया नहीं पढ़ने सर्विसेज तक. Okay sir. पढ़ो बेटा. Sir, chapter 9, Introduction to Email. Sir, email is the most popular service of internet. Email enables us to electronically exchange messages with other internet users wherever they may be. A computer, a modem or network connection and an email address are needed for using an email. Email was one of the original features of the internet, enabling scientists and researchers working on government score projects to communicate with their colleagues at other locations. Today, almost anyone who has internet access also has access to email. So, theoretically, you can communicate with almost any internet user in the world. This certainly has made email one of the most popular internet service. Very good beta. Okay, let's see. What is email? Actually, whenever you wanted to transmit your data and whenever you wanted to communicate with someone, you can use email. Like your Gmail, Yahoo Mail and other mail services are the mail services which uses the internet while to send your data. ठीक है, हम बात करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम ईमेल का यूज करते हैं. यहाँ से सबको क्लियर है कि नहीं? इन द लाइन में किसी को कोई डाउट? No sir. No problem. No sir. Okay. No sir. Now, time before email कौन पढ़ेगा बेटा? Take your name. Tanmay Gupta, are you want to read it? Tanmay? Yes sir. वो किसका फोन आ रहा है? Okay, Tanmay, are you there? बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, हमें तो लगता नहीं क्या पढ़ पाओगे. ओके, दीपांशु पटेल. हाँ बेटा आपकी आवाज आ रही है सही से? Yes sir. ओके, रीड फ्रॉम हियर बेटा. पढ़ो बेटा, पढ़ो यहाँ से. पढ़ो बेटा. Thanks, sir. Thanks for email messages. यस बेटा. For thousands of years, people have been using various means to communicate with each other. Some of these means of communication are message by fire. Fire was used as a means of communication in many parts of the world. In 1588, a chain of bonfires was used to send warning signals from one end of the country to the other. Message by runner. The most famous exchange of messages
took place in 490 BC when a runner named Philippides Philippides ran about 40 kilometers to spread news of a Greek victory at the Battle of Marathon. Even in India, kings and emperors stationed relay horses to spread messages from one place to another. कंटिन्यू करो बेटा, कंटिन्यू करो, आगे पढ़ो. मैसेजेस बाय पिजन. Message by pigeons. Pigeons have been used to send letters and messages for a long time. Organized methods. In AD 1, the first postal service was started by China, Persia, and the Roman Empire. Messages were written on scrolls and carried on horsebacks or by ships. In such cases, messages would take weeks to arrive because for the long distance. Later, armed mail coaches were used. The first mail by a train was sent in the 19th century, making the postal service much cheaper to use. The first airmail service began in 1918 between Washington DC and New York. Letters and packages could be sent across the two cities in just 2 days. Message by wire. After the invention of telegraph in 1837, messages could be sent over long distances very quickly. Telegraph machines spelled out words in Morse code, a code in which combinations of dots and dashes made up each letter. Message and instant. The first fax machine, which is used to send messages very fast, was launched in 1984. Email. Ray Tomlinson developed the first email application for the ARPANET in 1971, consisting of a program called SND and XG for sending mail and a program called ReadMail for reading mail. In the 1918, such messages were exchanged between computers in offices and universities that had been linked together. By 1990, email had gone worldwide, and today our lives without email seems incomplete. वेरी गुड बेटा. चलो अब इसी करके पढ़ते हैं कि आपने जो पढ़ना है वो समझते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा? फर्स्ट है मैसेज विद फायर. जब हमारे पास ईमेल नहीं था, जब हमारे पास टेलीफोन नहीं था, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम कैसे डाटा सेंड करते थे. तब की जनरेशन में अगर जाने की कोशिश करो कि आज से 2000-3000 साल पहले, नहीं 5-6 साल पहले ठीक है, आज से 5-6 साल पहले जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, करंट नहीं था, लाइट्स नहीं थी, रेलवेज नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस समय डाटा कैसे सेंड किया जाता था? उस समय सबसे पहले जो मैसेज भेजे जाते थे फायर के थ्रू भेजे जाते थे. कितने लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है? सबने बाहुबली मूवी देखी कि नहीं? ओके. जब आपने बिल्कुल जब आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, आप लोगों को देखना भी चाहिए. हमने जब बाहुबली मूवी देखी होगी तो जब देखा होगा कि जब वो क्या नाम है, जो अपना हीरो रहता है, जब अपनी मम्मी को छुड़ा के वहां से भागता है तो वहां पे आग लगा दी जाती है. एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे ढेर सारी लकड़ियां रखी रहती हैं, उसमें आग लगा देते हैं वो लोग. माहिष्मती वाले जो रहते हैं वो लोग आग लगा देते हैं. पूरे राज्य को पता चल जाता है कि इमरजेंसी है. देखा है कभी ये सीन याद आ रहा है कि नहीं किसी को? हाँ, तो अपनी मम्मी को जब लेके भागता है, जैसे वो लेके भागता है, हाँ, तो लोग क्या करते हैं, लोग आग लगा देते हैं. आग लगाने से क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक जगह होती है, वो एक स्पेशल जगह पे आग लगाते हैं, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि क्या ये इमरजेंसी है. जिससे क्या होता है, सबको तुरंत मैसेज मिल जाता था कि हाँ, अगर यहाँ पे आग लगी है, फिर इस पोजीशन पे आग लगी हुई है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे इमरजेंसी है. तो भागते थे सब लोग अलर्ट मोड में रहते थे. तो क्या होता था, फायर वॉज यूज्ड एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. In 1588, a chain of bonfire was used to send a warning signal from one end of the country to another end. मतलब क्या होता था कि आपके एक एंड से दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए ढेर सारी आग ऐसी लगा दी जाती थी.
आपको पता होगा जब आप लोग देखते हो कि होलिका दहन वगैरह देखा होगा आपने होली के समय पर, तो बहुत बड़ी बड़ी आग लगती है जो कि बहुत दूर से भी दिखाई देती है। तो अगर हम ऐसा एक चैन बना दें थोड़ी थोड़ी दूर पे आग लगाने के लिए, तो क्या होगा, एक सिग्नल पहुंच जाएगा कि नहीं, है कि नहीं? क्लियर है? बोलो क्लास 6। Yes. ओके, Yes, sir. अब देखो Yes, sir. ये मैसेज बाय रनर। अच्छा आप देखो मैसेज बाय रनर, देखो क्या होता था। पहले क्या होता था कि पहले के लोगों के पास कोई कम्युनिकेशन सिग्नल होते नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि हम रनर को भर्ती करेंगे। रनर मतलब क्या? रनर मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दौड़ के आपके चिट्ठी को या आपके लेटर को जाके देगा अगले पर्सन को, अगला पर्सन से लाके आपको देगा। जैसे कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो मैं यहाँ से उस बंदे के पेपर पे लिख के दूंगा व्हाट इज योर नेम। वो बंदा यहाँ से पैदल दौड़ते दौड़ते तुम्हारे घर जाएगा। तुम्हारे घर जाकर के तुमसे मेरे चिट्ठी दिखाएगा, उसमें तुम अपना नाम लिखोगे, फिर तुम्हारे घर से दौड़ के चिट्ठी मेरे पास आएगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता था। तो हुआ था कि एक बार 490 BC, मतलब 490 क्या 490 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 490 साल पहले की बात है। एक फिडीफिडीस नाम का धावक था, फिडीफिडीस नाम का रनर था जो कि दौड़ता था। उसने लगभग 40 किलोमीटर दूरी तय की थी। उसने 40 किलोमीटर दूरी तय की थी ये बताने के लिए कि ग्रीक जो है, ग्रीक एक जगह थी, राज्य का नाम है, ग्रीक जीत गया है बैटल ऑफ मैराथन। मतलब मैराथन की जो लड़ाई है कौन जीता है? ग्रीक जीता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ ये मैराथन की रेस होती है 40 किलोमीटर की, कभी नोटिस किया आप लोगों ने? Yes, sir. ओलंपिक वगैरह में भी होती है। तो ऐसा क्यों होती है? क्योंकि जो फिडीफिडीस नाम का व्यक्ति था वो 40 किलोमीटर दौड़ा था इस न्यूज को बताने के लिए, और जैसे ही उसने न्यूज डिलीवर की, अपने राजा को बताया कि हम हार गए, हम जीत गए, जैसे उसने बताया तुरंत ही फिडीफिडीस की मौत हो गई थी। उसी समय वो मर गया था, तुरंत वो फिडीफिडीस मर गया था। तो फिडीफिडीस की याद में हम लोग 40 किलोमीटर की मैराथन रेस रखते हैं, जिसको हम लोग मैराथन रेस का नाम देते हैं, जिसमें लोग 40 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। 40 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, ऐसे 2 रेस सेगमेंट होते हैं। 10 किलोमीटर की भी मैराथन होती है। मैराथन मतलब एक बहुत लंबी रेस जिसको दौड़ पाना लगभग हाँ। सर फिलिपिडीज कैसे मर गए थे? बेटा उसको दौड़ना पड़ा था ना, 40 किलोमीटर तुम दौड़ोगे तो क्या होगा तुम्हारी हालत बताओ। तो 40 किलोमीटर 3-4 राउंड लगाया उन्होंने, वो मर गए थे। फिर दौड़ते दौड़ते ही वो खत्म हो गए थे। सर मैसेज उन्होंने दिया था फिर उनके पास, क्या मिला था? सर मैसेज देने के लिए भागा था, वो वापस भी आए थे बिल्कुल। फिर बाद में जब दिया तब मर गए। देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ इसके बारे में कुछ नेट से। ये देखो, ये इनकी मूर्ति फिडीफिडीस की, ठीक है। ये 490 BC में इन्होंने रनिंग की थी। इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, स्टोरी इनकी ये है। क्या है स्टोरी की? हाँ देखो, एन अमेरिकन सॉरी एन एथलेटिकल स्पार्टा, ये देखो उन्होंने ही रन अबाउट 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर 2 दिन में दौड़े थे, ठीक है। 240 किलोमीटर इन 2 days। देन ही रैन फॉर द 40 किलोमीटर बैटल ऑफ द वर्ल्ड एंड ही डाइड। देखो लिखा ना बेटा, ये कोई स्टूडेंट की लिखी हुई है, आप देखो। तो होता हुआ क्या नहीं, सबको दिख रहा है कि नहीं? विजुअल जितना मैंने हाईलाइट किया है। देखो अब इसमें क्या लिखा है। जो फिडीफिडीस थे इन्होंने क्या किया था कि स्पार्टा के लिए रिक्वेस्ट करने गए थे स्पार्टा से। स्पार्टा एक जगह का नाम है, स्पार्टा बहुत ही फेमस जगह है जहाँ के लोग, मतलब ऐसा माना जाता था कि यहाँ के जो लोग होते थे देखने में बहुत ज्यादा बलिष्ठ और बहुत ही खतरनाक थे। इनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। ये स्पार्टा है, स्पार्टा आपका पड़ता था यहाँ पे ग्रीक में।
तो ये जो होता था स्पार्टा, मतलब इसके बारे में ऐसा बोला जाता था कि यहाँ के लोग मतलब बहुत ही ज्यादा बलशाली होते थे, जैसे अपने यहाँ बाहुबली नहीं होते वैसे ही बाहुबली टाइप के लोग रहते थे यहाँ पे। यहाँ पे कितनी बड़ी सेना आती थी, यहाँ पे 300 लोग थे स्पार्टा में, सिर्फ 300 सैनिक, इन्होंने 10,000 या 20,000 की सेना को हरा दिया था, इतने बलवान होते थे। तो क्या हुआ कि स्पार्टा को रिक्वेस्ट किया था हेल्प के लिए पार्शियन ने, तो उसके लिए क्या हुआ था कि मैराथन ग्रीक में जाना था। देखो ये मैराथन जगह का नाम है, ऊपर देखो मैराथन टाउन आपको दिख रहा है, ये मैराथन टाउन है, उनको यहाँ पे जाना था, ठीक है, कहाँ से, स्पार्टा से। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि 2 दिन में 240 किलोमीटर उन्होंने दौड़ा। 240 किलोमीटर बेटा कुछ होता है कि नहीं होता है? 240 किलोमीटर, लाइक 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा जाता। 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाते, एकदम सही कह रहे हो बेटा। था क्या बेटा? सर इनको सब किस जगह जाना था? इनको स्पार्टा जाना था हेल्प के लिए, कि हमको आप मदद करो वहाँ युद्ध में। इसके बाद 40 किलोमीटर दौड़े, उसके बाद उन्होंने जब नियर मैराथन के पास पहुंचे तो वहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि पर्शिया जो है उसमें जीत गया है, अनाउंस टू द ग्रीक विक्ट्री और पर्शिया, यानी पर्शिया से कौन जीत गया है? पर्शिया जो था, पर्शिया से जीत गया है कौन? इनका ग्रीक, जहाँ के निवासी थे, अनाउंस करने के लिए गए थे बैटल ऑफ मैराथन में, जिसके कारण उन्होंने इतना दौड़ लिया था जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, एंड देन कोलैप्स एंड डेथ। क्या बेटा? सर वो कंटिन्यू दौड़े थे? हाँ बेटा, 2 दिन लगातार दौड़े थे, इसीलिए 2 दिन लगातार दौड़े थे। फिर तीसरे दिन जब वो 40 किलोमीटर और दौड़ने के लिए गए तो उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए फिलीपीडीज का नाम बहुत फेमस है। और इन्हीं के नाम पे क्या होता है, इसी के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, मैराथन रेस करते हैं, ठीक है। आए टॉपिक पे वापस, मैसेज बाय रनर, ये हो गया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमें आज मिल गई, तो ये इस तरीके से रन करते हैं। चलो, मैसेज बाय पिजन, ये तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कबूतर जा जा जा, सबने सुना होगा, कबूतर जाता है, कबूतर के गले में चिट्ठी बांधते थे, कबूतर चिट्ठी दे आता था। अब देखो ऑर्गेनाइज्ड मेथड, ये क्या होता है कि जो हमारा एडी वन है, यानी आफ्टर डोमिनेंस, यानी जब हमारे फर्स्ट चल रहा था यार, पहली पोस्टल सर्विस जो कि चाइना में स्टार्ट की गई थी, तो पर्शिया एंड द रोमन एम्पायर, ठीक है। चाइना में कहाँ पे? चाइना में पर्शिया पे और रोमन एम्पायर में शुरू की गई थी। ये लोग क्या करते थे कि ये लोग मैसेज को लिख देते थे, कहाँ लिख देते थे बेटा? घोड़े पे लिख देते थे, ठीक है। किस पे? घोड़े पे लिख कर देते थे या फिर शिप पे लिख देते थे। और वो क्या होता था, ये सब मैसेज जा करके वहां पे अराइव हो जाते थे बहुत ही ज्यादा दूर डिस्टेंस पे। अब मान लो अपने शिप पे कुछ लिख दिया है और वो शिप तुम्हारे पास पहुंचेगा, क्योंकि पेपर तो होते नहीं थे उस समय, न्यूज पेपर वगैरह तो थे नहीं, पेपर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो क्या करते थे वो लोग? उसी में लकड़ी पे ही लिख देते थे। लकड़ी पे लिखना ईजी है ना, आपने कोई भी सामान लिया, हथौड़ी या फिर कुछ भी लिया, कील से ही आप लिख देते हो, तो उन्होंने लिख दिया और शिप को भेज दिया, शिप पहुंच गया वहां पे,